ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਬਲਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੈਰ ਆ? ਗਏ ਹੋ ਮੌਲਵੀਓ, ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੋ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਥੱਲੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਸਾਕੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਤੱਕ ਲਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਹੋਰ ਆ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਕੀ ਇਸਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਆ ਸੀ 100 ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ 500 ਯੂਰੋ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਭੈੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 500 ਕੀ 5000 ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਬਈ ਇੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਤੇਰੇ। ਓਏ ਬਲਾਲ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਖਾਦੀ ਓ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਕਰੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਕੀ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜੋੜ ਕੀਤੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਦਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਘਾਤੇ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਦੁਆਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਆਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦੁਆਰ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈ ਮੈਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਹੀ ਥੱਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੋਣਾ ਥੱਲੇ ਰੋਤੇ ਦੇ ਸੋਣਾ। ਉਹ ਬਲਾਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਕੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਧਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਦੂਰ। ये सस्ते मोबाइल ये देखो थोड़ी जो साथी साहब है आईफोन ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਨ ਪੈਕ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ 100 ਦਾ 200 ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗਾ ਅਗਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਸੇਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ। मोबाइल चोरी का पूछा गया, मोबाइल चोरी करते हुए ये पूछा ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਲਾਲ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਾਊਡਰ ਚ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਚਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯੂਕੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਇਆ ਯੂਕੇ ਮੰਗਾਓ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਪਿਨ ਪੈਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ?
पिन पैक भी दूसरे भी। सिद्धू कह रहे हैं फ्रॉड करके। सिद्धू दी क्या ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨੋਕੀਆ 9600 ਯਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मेरे को पूछ लो केड़ा फोन। वालेकुम सलाम की हाल है सिद्धू? ठीक साकिब भाई तुसी सुनाओ। शुक्र है रब दी जात दा। केड़ा फोन कह रहे हो आया सी? फोन आया सी नोकिया दा ना ਉਹ ਫਲਿਪ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਫਲਿਪ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ 9500 ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਮਾਡਰਨ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇ ਕਵਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ 240 260 ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ 40 ਤੋਂ 45 ਯੂਰੋ ਦਾ। ਬੜਾ ਵੇਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਫੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨੋਕੀਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਫੋਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ 600 ਸੀ 6600 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਫੋਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਤੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੱਟੂ ਜਿਹਾ। ਯਸ ਵਿੰਡੋ ਨੋਕੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ 10,000 ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਐਪਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਨੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟਰੋਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪਲ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਥੱਲੇ ਰਹੀਲ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਕ। ਰਿੰਗਟੋਨ ਆ ਰਹੀ ਮਿੱਠਾ अबू बकर भाई ना करो यार कल सुनाइए साडी यार प्लीज वो फिर मैनू क्या कर अपने घर बुला के मेरी बेइज्जती की है। ਰਾਈਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਤਾਓ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਭਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਅਮਰਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਲਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਚੜਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣਾ ਅਗਰ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਚਲੋ
ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਕੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। राहुल दोबारा चला गया जमात च? जी आमिर भाई वाली गल तो पूछ लो ना साकी भाई। रहील आप ये बता दें कि आप हमसे तो भाई सुन लो ना, आपने हमसे कल ये वादा किया ना कि आप आमिर भाई के बारे में कोई बात नहीं करेंगे और हम आपकी इज्जत पे हाथ नहीं डालेंगे, ऐसे ही है ना? जब एक मरतबा कमिटमेंट हो गया तो बार बार उस पे एक ही कैसेट को रिपीट करना जरूरी है यार। वो कुछ भाइयों को नहीं पता ना यार, वो लेट नाइट आधी रात को ये मुआहदा हुआ था ना भाई। उस वक्त साकी भाई सो रहे थे, अबू बकर भाई सो रहे थे। तो आप अपनी तरफ से ये भी तो बताओ, कि आपने भी तो वादा किया है, वो जो आपने मेरा एड्रेस रिवील किया है और वो जो घर का पूरे स्क्रीनशॉट लगाया है, वो सब नहीं करेंगे और डिलीट करेंगे, ये भाई भी तो करेंगे बताओ। भाई। चलो मैं पूरी बात बता देता हूँ साकी भाई। हमने ये वादा किया है कि हम रहील के घर का वो एक हमने स्क्रीनशॉट लगाया था, एड्रेस लगाया था, इसकी पिक्चर लगाई थी जो हमारे पास है, और इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। और ये उसके बदले में जो हमें ये जो मर्जी कहे, हमारे साथ जो मर्जी करे, हमें गालियां दे जिस तरह मर्जी, लेकिन ये आमिर भाई के बारे में कोई गालन गलोच या कोई ऐसी गलत बात नहीं करेगा। ऐसे ही रहील, कोई बात मैंने मिस तो नहीं की? इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे ये भी तो बताओ ना। ये अपने पास जो आपके पास सब कुछ है वो डिलीट करेंगे, स्क्रीनशॉट और वो एड्रेस वगैरह जो भी है डिलीट करेंगे कलमा पढ़ के, क्योंकि मैं देख तो नहीं रहा आपको, कलमा पढ़ के बताएं वो करेंगे आप। जी जी बिल्कुल साकी भाई। इसके बदले में जो जो हमारे पास इसका डाटा है ना, या जो भी हमारे पास चीजें, वो हम डिलीट कर देंगे। ये बात वो मुझे भेज के बाद में डिलीट कर देना। वो खुदा का ना आ जाए यार। चंगा भला कट्टा मुकाते हो, तुसी नवा खोलो। नहीं, मुझे भी तो चाहिए ना, मेरे पास भी होने चाहिए। रहीला आपने बताया नहीं, आप वापस चले गए हो जमात में? चला गया। वो खुद नहीं बता रहा। नहीं वो मैं उसका अब वो हूँ, उसका क्या समझ लें, उसका क्या उसको बोलते हैं, केयर टेकर। तर्जमान नहीं, तर्जमान नहीं, केयर टेकर। अच्छा, तुसी ਇਹਦੇ केयर टेकर हो जी। मतलब रहील का पूरा ख्याल मैं रखूंगा टिकटॉक पे। रहील के साथ क्या हो रहा है, रहील के साथ अगर ज्यादती हो रही है, रहील के साथ अगर कोई गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो उस पे मैं जो है ना रहील की हिफाजत करूंगा। रहील की इज्जत पे हमला हुआ तो मैं इसकी वो करूंगा। अभी मलक साहब ने रहील को बहुत गालियां दी हैं, तो मैं अभी मलक साहब से भी लड़ने जाऊंगा। अगर आपने सुननी है तो मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसा सुना दें जरा थोड़ी सी। एक मिनट, अबू बकर भाई आप प्ले कर सकते हैं? कोई भाई प्ले कर सकता है यहाँ पे? अहमद अली साहब तुसी प्ले कर सकते हैं? सेंड करो एक मिनट। ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੀਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ही। जवाब दे दो, इस बात का जवाब दे दो प्लीज। कराची, अच्छा पाकिस्तान कराची ਦਾ। ਉਹ कराची ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ 50-100 ਦਿੱਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। खुदा का ना जे भाईजान, कल बराडा लगियां रही इस काम दे उत्ते कि ਅਸੀਂ ਇਹ कहने पे ਤੁਸੀਂ हद यार साकी भाई ना करो यार। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਡਾ ਕੰਮ ਸਸਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਸਤਾ। ओए ओ हैगा, लेकिन वो
ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਉਧਰੋਂ। अच्छा। हाँ, मामलात खत्म हो गए ना भाईजान। अबू बकर भाई प्ले कर दो। अच्छा, ये जो भी हम ऑडियो प्ले करने लगे हैं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं मलक साहब से, रहील इजाजत है मैं लड़ने चला जाऊं? नहीं नहीं, मलिक साहब अपने भाई हैं। मलिक साहब का क्या है, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैं उनसे कह रहा था कि आप ऊपर सरकारी मुसलमानों को बुला के हज़रत मिर्ज़ा साहब पर शातमेंट करवाते हैं, तबर्रा करवाते हैं, जमात पे करवाते हैं तबर्रा, तो वो बंद कर दें, तमाशा बंद कर दें, ये रोज़ लगाते हैं शाम में। तो उस पर उन्होंने कहा मैं ये करवाऊँगा, करूँगा भी, तो उस पर मेरे मुँह से गाली निकली। उसके बाद फिर मलिक साहब आपके सामने ही है, क्या सिचुएशन है, लगा दें ऑडियो, सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। नहीं, इसमें भी मलिक साहब को बहुत गालियां दी है सिद्धू, और वो मैं था वहाँ पर, बहुत गालियां दी है। कराची का एड्रेस है, मैं भी कराची से हूँ, मुझे बताओ एफबी एरिया से हूँ मैं। और नहीं यार ब्लैक भाई ना करें यार प्लीज, आपकी मोहब्बत का, आपके ताउन का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मुझे पता है कराची से हैं और मुझे आपका सारा प्रोफाइल पता है भाई। मैं जब एक दफा एयरपोर्ट पे आया था तो वो जिस तरह आपने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं, अब मामलात खत्म हो चुके हैं। तो अब जी मैं तो पहले आपसे बोल चुका हूँ राजा साहब कि सिद्धू साहब अगर मौजूद हैं, सिद्धू साहब ठीक है? जी ठीक है इसको बोलने दें। हाँ जी बोलो। जी मैं तो पहले बोल चुका हूँ राजा साहब कि मैं आपसे मिलता साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। और पहले भी करना चाहता था, एक वक्त उनके साथ गुजरा है, मैंने टाइम गुजरा है, तो लेकिन आज मुझे इतना गुस्सा आया कि यार ये लोग इस तरह कर रहे हैं, उनकी पिक्चर लगा दी, एड्रेस लिख दिया नीचे। आपको पता है जैसे ये कैमरा ऑन हुआ था ना, उसके तकरीबन 7 से 8 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद ही नीचे कमेंट्स में पूरा एड्रेस नीचे लिखा होता है, डिसमेंटल आईडी ने लिखा था वो एड्रेस पूरा। आज के सुबह मेरी ब्रॉड पे आया, उसने माना है कि हाँ मैंने एड्रेस लिखा था, तो मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं। तो इस तरह की अगर करेंगे आप मेरे नज़र साहब के स्टूडेंट, तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। बाकी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके खिलाफ अगेंस्ट कभी कोई बात नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। ये भी मुझसे वादा करें जितने भी इनके पास कुछ भी है वो सब डिलीट करेंगे, अल्लाह की जगह के लिए। अल्लाह ताला देख रहा है, मैं नहीं देख रहा, बाकी जगह का अल्लाह वासी न जगह। अच्छा, मैं भी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ राजा साहब कि अगर ये हमें जो मर्जी कहे, मुझे कहे, रेहान को कहे, बाकी जितने भी हैं, अली हक को कहे, फलाने को, हम कभी भी ये कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन ये आमिर भाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा या उनके बारे में फजूल कुछ नहीं बोलेगा ना, तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि हम कोई भी वो वीडियो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, खुदा की कसम वो मेरी ही ब्रॉड, इसको पूछ लें, वो मेरी ही ब्रॉड पर रिकॉर्डिंग हुई है और वो मैंने ही निकाली है। वो सिर्फ इस टाइम 3 बंदों के पास है और मैंने किसी को नहीं भेजी। तो सही है, वो हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करेंगे अगर ये शुरुआत हो। घोड़ी बना कर दूसरी ने गाला दिए। मलक साहब की जड़ी गाला ने वही तो सुनानिया ने, जड़ी मलक साहब ने ज्यादती की है। गाडू पियो दे, गाडू पुत्रा कदी मार चुदा रहे उधर, कदी इधर मैं तो बिलाल भाई की बिराट से गाडू नस्ल के गाडू बच्चे, तेरी मां को लोड़ा दई मैं, तेरी मां को लोड़ा चुपाई मैं, खोती दिया पुत्रा तेरे लहर में बना के, कभी तेरे मुंह में डालूं, कभी तेरी मां के, कभी तेरी तेरी मां दे बच्चिया, तेरी मां की कोई में मैं लड़ पाऊं, कष्टी मां दे बच्चिया, तेरी मां दी गोरी गोरी। ओए बुरी बात यार, बुरी बात। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਰੇਲ ਯਾਰ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ? ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ।
ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਨੇ ਨਾ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੱਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੀ ਦਾ ਉਹ ਤਲਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਇਤਜਾਜ ਬਣਦਾ ਵਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੂ ਗਾਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਚਲੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ बिल्कुल बिल्कुल जहीर मैं जाके कहता हूँ मलक साहब से यार अच्छा अबू मूसा भाई मैं चक्कर लगाता हूँ यार मैं आया यार है कोई मेरा खरा मर्दा ही चढ़िया है सिद्धू बात सुनो सिद्धू ये मलिक से अनब्लॉक करवाना क्योंकि मैंने भी मलिक से बात करनी है कि उसने इतनी गालियां दी हैं क्या मैंने कौन सी गलत बात की थी अनब्लॉक करवाना उससे मुझे ठीक है जान मैं करवा दूंगा नो प्रॉब्लम ठीक है भाईजान बहुत अच्छा भाईजान शुक्रिया भाईजान अब ये भाई तुम देख लो जान के ऐड कर रहे हो बीच में जान आप बोल रहे हो भाई मैं लगा रहा हूँ मैं भाई बोल रहा हूँ आप जान बोल रहे हो अच्छा मैं आया जी जरा 2 मिनट दे मुझे तोबा 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 यार राहिल तू की अपना करैक्टर बना लिया टिकटॉक ते हैं निकल गया जोन जी शुक्रिया अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम ये जो रहील आया था तो मलक साहब के बारे में कह रहा था कि उसने गालियाँ दे रहा है तो इसने ये नहीं बताया कि सबसे पहले मैंने शुरू की हैं वो बार बार कहता रहा कि ऐसे ना करो ना मुझे तंग करो ना करो इसने उसको तंग कर करके गालियाँ निकलवाई और मुसलमानों को इसने बहुत गालियाँ दी हैं कल चलो भाई जो देगा वो खाएगा हमें क्या अस्सलाम वालेकुम सफिया बाजी क्या हाल है कैसी हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह भाई मैं तो बड़ी हैप्पी हूँ सच्ची में मैं तो कल से ना एक एक को पकड़ के अम्मा को 6 दफा बता चुकी हूँ क्या अरे मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी उठ के मैं बैठ रही थी बिलाल ने सुनी थी कल मेरी बात शायद अब्बू बकर ने भी सुनी है मुझे बचपन से बड़ा ही शौक था रिकॉर्डिंग कर लो सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ हाँ और क्या हाल चाल है सबका ठीक है बाजी अल्हम्दुलिल्लाह आप सुना ठीक है अल्लाह का शुक्र बिलाल कहाँ निकला हुआ है सारे खतने बोल के मुझाया गया ना तो खतने बोल पे तो पैसे बड़े मिलते हैं तो वो पैसे कमा रहे हैं ऐसे कमा रहे हैं अब वो कल थे वहां पे आप हुसैनी भाई की ब्रॉड पे हाँ जी वो पूरी ब्रॉड की गाड़ी वो सुनी थी लेकिन कल मैं की ये बात नहीं मैं ये बता दूं कि बगैर सुने मैंने निकाली की हुई 16-20 मिनट में ज्यादा भाई मुझे ना बचपन से बड़ा शौक था मैं अभी वही अम्मा को बता रही थी और अम्मा हंस हंस के ना बस हंसी जा रही थी मैंने कहा अम्मा मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि कोई मुझे कुछ कहे तो मुझे फौरन बर्जिस्ता जवाब आ जाए कि मैं सही टाइम पे अब मेरे साथ मसला क्या होता है कि मुझे अगले दिन जवाब समझ आता है
या बात समझ आती है कि बंदा ये बोल के गया है, मुझे इसका ये जवाब देना चाहिए था। अब बात खत्म हो चुकी होती है, अब है प्रॉब्लम तो क्या करे बंदा। लेकिन कल जो है ना, वो मैंने डायरेक्ट जवाब दे दिया और वो भाई मजा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आया। इसका मतलब है मैं भी होशियार हो गई हूँ। अब अल्लाह करे रहूं होशियार, एक वंस अपॉन अ टाइम ना हो। मौका ले ले डिसमेंटलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यार आप भाइयों के सामने और आपके सामने मुझे अपना एक केस रखना है, मुझे इसमें से आप ये बताएं। पहली बात तो ये है कि आप एक बहन से बात कर रही हैं, यार वाला जो लफ्ज है उसको वापस लो। क्या कहा आपने? उनको बैन करके बुलाओ। ओ इमरान ओ गल ठीक कर रहा, तेरे सुनन च फर्क है, ओ सही कर रहा गल, हमें बाकी कह रहे हैं, दोस्तां नूं उनको कह नहीं रहा। कह रहे, हमें कह रहे हैं। अच्छा खैर, अच्छा बहरहाल केस यूँ है कि एक बंदा जो है वो ऑनलाइन होता है और किसी भी वजह से वो अपना कैमरा खोल लेता है, और दूसरा बंदा जो है वो सिर्फ एक घर की दरवाजे की तस्वीर देख के कहते यार ये तो मैंने देखा हुआ है। क्योंकि बात ये होती है कि वो बंदा जब उस एरिया में ग्रो अप हुआ और उसने उस घर को बनते हुए देखा, उसने लिटरली उसके सामने वो घर बनाया। तो आई मीन इसके अंदर मेरा क्या कसूर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राहिल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो पता नहीं क्या क्या, मैंने तो उसको कुछ कहा भी नहीं, मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया। आप यकीन कीजिए मेरे पास इतने मैसेजेस आए उसके बाद कि इसका एड्रेस दे दो हमें। मैंने कहा यार नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं देगा इसका एड्रेस। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये पीछे क्यों पड़ गया मेरे, कि हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं आज से मैंने कहा मैं चलो इससे मुफाहमत करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, राहिल ने खुद जो कहते हैं ना अपने आप को अनवील कर दिया। राहिल ने, मैंने एक कमेंट लिखा और एक दूसरी जगह जाके ये यहाँ पे चीखना शुरू हो गया कि तुमने मेरा वो करा है, एड्रेस जो है वो लीक करा है। अब अगर कोई भी अक्लमंद होता वो कहता एड्रेस कैसे लीक कर सकता है आदमी, इग्नोर कर दो कमेंट को, जाने दो, नेवर हैपेंड, तुमने कमेंट पढ़ा ही नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड ही एडमिटेड कि इसने कमेंट पढ़ा है, और जो उसका गुस्सा था वो बता रहा था कि वो कमेंट जो है वो कहीं करीब जाके लगा ऐसे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप सबसे, आप इंसाफ कीजिए कि इसमें कहीं मेरा कसूर है या मेरी कोई इसमें कोई ख़ता है, कोई गलती है, या मैंने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसके पीछे ये मुझे जो है वो धो के। कल रात को ये कहीं पे बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था इसको, मोहम्मद अफजल वराइज साहब भी थे, तो बातें करते करते अपने कहते हैं ना वो अंदाजे उसके अंदर आगे जाके इसने ये कह लाइक मेरी माँ को गालियाँ दे दी इसने। तो मैं बैठा सुन रहा था, मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ इसको, कि लाइक अगर सीरियसली अगर मेरा दिमाग घूम जाता और आज से 10 साल पुराना वाला जो है वो हसन होता, तो इसके तो मैं वो हशर करता कि इसको जो है वो इसको चलें आगे बात नहीं करते, बस सही है, यहीं तक बहुत है। पाकिस्तान से जाने की कुछ वजूहत इनमें से ये भी थी कि मैं जो था वो वहाँ कुछ था मेरा मसला। एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट है, मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी राय दें इस बारे में, ताकि ये बात जो है ये एक वो हो, इसकी एक गूंज बने। क्योंकि मेरे ऊपर ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने इसका एड्रेस रिवील किया, जबकि मैंने कहीं से इसके एड्रेस को किसी को भी नहीं बताया, और किसी से ना शेयर करा है, और ना ही किसी भी, लेकिन मेरी इल इंटेंशन है ही नहीं इसको लेके। एक इंसान की इल इंटेंशन होती है ना कि यार मैं जो वो इसको टॉर्चर करूँगा या कुछ करूँगा, ही नहीं। आई डोंट, ही इज़ नथिंग फॉर मी, कुछ भी नहीं है। इसकी औकात एक जो एक वो नहीं होती है जब आप ड्रायर में कपड़े चलाते हैं तो लिंट जमा होती है ना, इससे ज़्यादा औकात नहीं है इसकी मेरे सामने। तो ये आप बताइए, आप लोगों का क्या है इसके बारे में, आप क्या कहेंगे? सफिया पे ये जो है ना डिसमेंटलर, ये भी कराची के हैं और आप भी कराची की है।
इनसे पूछे रहील का एड्रेस इनको कैसे मिला। वो बता रहा है मैं रात को सोई थी, दोस्ती हो गई थी, सुबह उठी हूँ फिर फट था। रात को किसकी ब्रॉड थी, सिद्धू वगैरह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम हिफाजत करेंगे तुम्हारी और ये और वो अफजल बराइच के साथ। सुबह उठी हूँ तो वो जाहिर इसकानी भाई के पास बैठा हुआ था। लेकिन बाकी बातें छोड़ो, हसन बात सुनो, रहते कहाँ हो मुझे ये बताओ। PCHS बहुत दूर है, हम गुलशन इकबाल गुलिस्तानी जौहर। मेरा गुलशन इकबाल में भी बंगला है, ब्लॉक 7 में। ब्लॉक 2 वहाँ पे भी मेरा बंगला है। हम लोग पहले ब्लॉक 2 में और थे, बचपन ब्लॉक 2 में गुजरा है। ब्लॉक 7 में डिस्को बेकरी। हाँ, डिस्को बेकरी। मेरा बंगला ब्लॉक 7 में इतना पुराना है कि जब वो बना था तो वही था खाली। वो नहीं है गुलशन कॉलेज। हाँ, गुलशन कॉलेज। हाँ। बाद में पता है हमारा पूरा बचपन ब्लॉक 2 में गुजरा। उसके बाद हम लोग गुलिस्तान जौहर कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पीछे वहाँ शिफ्ट हो गए। सच्ची में कराची की कोई बात करे ना, मैं तो कहती हूँ पहले आओ। वही था खाली। आवाज कट गई थी। हमारा तो कोई बेंगलोर शेंगलोर नहीं है। वहां पर कराची यूनिवर्सिटी के पीछे झुग्गियां होती थी ना, झुग्गियां। जैसे ने बातें करी है ना, वहां पर 400 गज की झुग्गी बात कर रहे हैं। अच्छा सिस्टर, अगर आप चाहें तो मुबश्शिर मौलवी मुफ्ती मुबश्शिर जो कादियानियों के हैं, उनका एक आपको इट्स अ ह्यूज स्पेस ईमान ताज़ा करने के लिए एक मिर्जा साहब का सुनाना दूं, एक क्या कहते हैं मौजा। नहीं भाई, मैं इस वक्त अपने बेटों के पास बैठी हुई हूँ। आई एम एंजॉयिंग, मुझे नहीं सुनना। हाँ, तो ये भी इंशाल्लाह ताला एंजॉय ही आप करेंगी। अगर आप चाहती हैं तो सुना सकता हूँ, क्योंकि अभी टिकटॉक पर मेरे पास आया। नहीं रहने दे मलिक साहब, रहने दे। वसीम भाई आ जाए। बिलाल वापस आ गए। कल सुनी थी मेरी बात, बताओ मैंने बर्जस्ता जवाब दिया था कि नहीं? नहीं, जवाब तो आपने खूब दिए थे, अच्छी बात है, खुशी हुई जान के। वो वाले, स्पेशली वो वाले, आप पागल हैं जी। हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ब्लॉक 7 से, ब्लॉक गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 से। बाजी आप ब्लॉक 7 में रहती थी पहले? नहीं, ब्लॉक 2 में। फिर उसके बाद वो कराची यूनिवर्सिटी के पीछे जो झुग्गियां ना, वहां पर वो झुग्गियां लेकर फिर वहां पर वो पंखे एसी, यानी कि सफारी पार्क के पास या मस्कन? थोड़ी देर वहां पर आए हैं बिल्कुल। आप फिर मेरी अम्मी को जानती होंगी। सफारी पार्क के पता है क्या, अब्दुल्ला टेरेस है ना, जब तक हमारा वो घर नहीं बना था ना, तो हम लोग अब्दुल्ला टेरेस में रहे हुए हैं, और वो सफारी पार्क के पीछे खुलता था। कई दफा हमने डाकू वहां से आते जाते देखे हैं। आप ब्लॉक 7 या ब्लॉक 5 गुलशन इकबाल में किसी खोखर फैमिली को जानती थी? जी 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 जी, वहां पे इजलास होते थे, हम अक्सर जाते थे। तो आप तो सारे रिश्तेदार निकले फिर। आंटी खोकर, हम तो वहां पर हमने बड़े वहां गुलाब जामुन खाए हुए हैं, शामी कबाब, बड़े मजा आता था। दो बहनें थी। आप ये नाम आपको कभी याद आया? फवाद खान तो माय फेवरेट। नहीं, फवाद खान नहीं, फवाद खोखर। हाँ बिल्कुल 100%। और उसको फादी कहते थे, फादी। मेरे भाई के दोस्तों में से था, आई थिंक। अच्छा। तो तुसी तो मेरे रिश्तेदार निकले फिर, बड़े गहरे। अच्छा, वो मेरे दो भाई था ना, बड़ा वाला,
लाइक वो हमें आना जाना छोड़ता है। मुझे लग रहा है कि 100% याद आ गया है फवाद खोकर उनका। और छोटे का क्या नाम था? शहाब खोकर, शाबी शाबी कहते थे उसको। यार ये तो बड़ी मशहूर फैमिली थी, आप कैसे जानते हैं? पांच बहनें भी थी। अच्छा, गए होंगे वहां पे डाका मारने? नहीं, डाका मारने नहीं गए बाजी। और क्या कहते हैं, खोकर साहब की फैमिली में आप कहाँ से घुस गए? खोखर साहब की फैमिली में से तो हम खोखर नहीं हो सकते। क्या? मैंने कहा हम खोखर नहीं हो सकते। फिर तो बड़ा मजा आएगा अगर आप खोकर हैं, इसलिए कि हमारी फैमिली टर्म्स भी थे। मेरी अम्मी खोखर फैमिली में से हैं, मेरे वाले साहब नहीं है, मेरी अम्मी खोखर फैमिली में से। ओके, मुझे प्राइवेट में अपनी अम्मी का नाम लिखिएगा। मैं आपको वहां उस पे करूंगा। अभी मैं घर पे नहीं हूँ, वो टेलीफोन मेरा घर पे पड़ा है, मैं आपको करूंगा। आपको क्योंकि आपने बातों में बात कही ना उसकी, क्या कहते हैं, डिस्को बेकरी की। बुशरा बाजी को जानती हैं आपकी अम्मी? बुशरा बाजी को अब अम्मा पूछ रही, खोकर आंटी का हाल पूछ के आओ पहले। आंटी से पूछो, बुशरा बाजी को जानती हैं? बुशरा बाजी को 1 मिनट ठहरे, मैं आईपैड ही पर चल जाती हूँ ना लेके। अम्मा वो कह रहे हैं बुशरा बाजी को जानती हैं? कौन सी वाली बुशरा बाजी? अम्मी फवाद खोकर था ना उनका बेटा? फवाद खोकर। फवाद खोकर की अम्मी का नाम क्या था? जो खोकर आंटी हैं, उन नाम ना बताना, अभी नाम ना बताना। हम उनको कहते हैं ना खोकर आंटी, लेकिन उनका नाम कुछ और भी था ना साथ। लेकिन बताना नहीं है यहाँ पे। और कौन सी आंटी? बुशरा बाजी यानी कि मेरे लिए बुशरा आंटी थी, आप लोगों के लिए भी, आपके लिए भी, आपकी अम्मी के लिए बुशरा बाजी मोटी सी थी। कौन से ब्लॉक में रहती थी? ब्लॉक 7 में। ब्लॉक 7 में खोकर आंटी का तो मुझे अच्छी तरह से याद है। उनके घर तो इजलास होते थे ना, हम जाते थे। एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा। एग्जैक्टली, मुझे फौरन दिमाग में आया। एमदिया छोटी सी थी उस वक्त ना, 2-4 महीने की। मैं तुम्हें अकेले घर छोड़ के ना चली जाती थी इजलास पे। फिर रास्ते में मुझे अबू मिल गए। मैंने बताया उनको, घर भागे। तभी मैं इतनी पक्की एमदी हूँ। तभी 2 महीने की बच्ची को अकेले इजलास में छोड़ के जाती थी, इसलिए मैं इतनी पक्की एमदी। इजलास में तो जान थी ना हमारे। हाँ। अच्छा, आप अपनी अम्मी से एक बात पूछें। सुन रही हैं माँ? आपकी अम्मी को पता है उनकी एक बेटी की टांग नहीं थी एक्सीडेंट में? हाँ, बिल्कुल पता। वो सीओडी स्कूल में पढ़ती थी, पीएफ के पास, सनमे के पास, वो तो उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया था। बिल्कुल पता है। तो आप मेरे रिश्तेदार हैं फिर। मैं मुरादला था उस वाले है ना, जो शेख बशीर अहमद की बेटी हूँ। अच्छा आंटी, मुझे इतना नहीं पता। मुराद क्लास हाउस वाले तो फैसलाबाद के हैं। तो वो मेरे अब्बू थे ना। मैं आगे ये चीजन, ये फैसलाबाद वाला बोला। ओके माँ जी, मेरे एक रिश्तेदार हैं, कजन है, मैं फैसलाबाद से हूँ। वो रेल बाजार में, वो भी कपड़े का ही काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, और उनके भी जो शेख है ना चनेट के या दूसरे जो पास उनके साथ काफी ताल्लुकात है। हमारा भी यही काम है। मुराद क्लास हाउस वालों को हम जानते हैं पर्सनली, तो वो भी फैसलाबाद के, हम भी कारोबार भी। अभी कुछ साल पहले अटैक हुआ था मेरे भाइयों पे। हाँ, ओके। कौन से साल की बात कर रही हैं? तो क्या कौन से साल की? 2010 की। 2010 में तो मार्च में मैं उधर थी। बहुत छोटा था, नहीं मुझे नहीं पता होगा। मुझे 2018 के बाद का, मतलब क्योंकि मैं उनको तब जाने लगा था। मैं फैसलाबाद शिफ्ट पहले मैं खुड़ियावाला रहता था। खुड़ियावाला अगर कोई नहीं जानता तो वो लाहौर रोड के ऊपर है। बेसिकली हम है तो शहर के, लेकिन हम भी किसी वजह से वहां मूव हुए थे। अभी मेरा एक भाई की दुकान है ना, मेरे भाई की दुकान है मुराद फैब्रिक्स, पीपल्स कॉलोनी में है वो। पीपल कॉलोनी नंबर कौन सा नंबर? पीपल कॉलोनी नंबर 2 या 1? ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये अच्छा, क्योंकि 2 आना ये। हाँ जी, हाँ नहीं मैं समझ गया। ठीक हो गया, क्या बात, बेहतरीन हो गया। कराची तो फैसलाबाद ये तारा जुड़ गया नहीं।
कराची मैं शादी होके कराची गई थी, फिर हम बहुत साल, अभी हमें 24 साल हो गए हैं स्वीडन आए हुए। अच्छा माँ जी तो फिर फैसलाबाद की हैं, मतलब ये तो मेरी पार्टी की है ना फिर। फैसलाबाद की। क्या बात है, ऐसे गल हुई ना। फैसलाबाद में रबुआ से या नहीं, फैसलाबाद बड़ा शहर है। नहीं, कहाँ से फैसलाबाद में, कौन सा इलाका? फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी। ओके। मैम आज इधर जहाँ पे नहीं है, शायद अब तो आपको ना, क्योंकि टाइम हो गया है, जहाँ सरगोदा रोड है, जहाँ पे मेट्रो वगैरह है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आप मोटरवे को जाते हैं, मैं उस रोड पे रहता हूँ, जहाँ पे किसी जमाने में चुंगी होती थी और जीनत स्कूल होता था। ठीक है। जहाँ जिस रोड से आप रबुआ को नहीं जाते, चनेयोड को जाते हैं, उस रोड पे मैं वो हम लोग अक्सर रब्बा जाते थे दुआ करने। समाना पुल सुना होगा आपने, समाना पुल, आठ चक, या वो कमालपुर, जिस रोड पे ये है, या नलका को आला तो सुना होगा, बड़े लोगों ने नलका को आला का पता है, बड़े लोग उस रोड पे मारा था। वसीम भाई पूछ लो, को गल पूछनी जेते हो। सन हजरत मसीह मौद की गल सुना दे। नहीं सुनानी हजरत मसीह मौद की गल बिलाल भाई? मालिक साहब मौका मालनो समझा करो। मेरा तो कदी कदी दिल कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाज आ जाओ मलिक साहब। अम्मा देखे मैं कहाँ से आया हूँ। ना ना मलिक साहब ना करो, लड़ाई नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा या बताएं मैं कौन बोल रही हूँ? तुम मेरी जान हो। आप मेरे पास आपके पास दूसरी आईडी है। अब हम ऐसी बात क्या करेंगे? ओके। मैं आपको फैसलाबाद ज्यादा अच्छा लगता है या कराची? अब क्या बताऊं? मुश्किल है। फैसलाबाद का एक अपना था, रूप था, जाना वहाँ दुकानों पे जाना, शॉपिंग करनी, मेरे भाइयों की दुकानें थी, अब्बू की दुकान थी, वो अलग था जैसे। तो साथ ही अम्मी का घर से फ़ोन आ जाता था कि जो भी ये ख़रीदेगी ना उसके पैसे नहीं देने आपने। फिर मैं सारी शॉपिंग करके भर के गाड़ी ले आती थी। वो अलग था, एक प्यार नहीं था। दूसरा कराची, वहाँ बहुत साल रहे हैं हम। मेरे पैदा होने से पहले आप लोगों ने बहुत स्ट्रगलिंग टाइम देखा है ना। Hence it proves that कि अम्मा जी को फैसलाबाद ज्यादा पसंद है, क्योंकि फैसलाबाद की ज्यादा वो फैसलाबाद में अमीर होते थे ना। कराची में शादी के बाद स्ट्रगलिंग टाइम और घर बनाना। नहीं सोफिया, एक अच्छी बात ये है कि हम लोग कभी भी एक, जैसे शादी के 3 महीने बाद एक घर में रहे थे किराए का। फिर उसके बाद हमने गुलशन इकबाल में 240 गज का प्लॉट खरीदा, फिर वो बेच के तो 400 गज का गुलिस्तान जौहर में। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम लोग किराए के घर में नहीं कभी रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कितना फनी है ना। हम लोग 2 आईडी से बात कर रहे हैं सेम घर से। अम्मा को फैसलाबाद के बस एक और भी है, फैसलाबाद के जो लोग हैं ना वो इतने रूखे सूखे नहीं है, और ना ही वो यानी मजाहिया लोग हैं। शुगर में लेंगे अगर आप, इवन अगर आप फैमिली भी है ना, तो वो इतना इसको नहीं ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप कोई भी हैं, हमारे लोगों का ये है कि वो
इंसान के साथ इतना इंटेंस एक्सट्रीम पे भी जाते, नॉर्मल होते हैं। हाँ, शुगर मेले लगाते हैं, कोई हो बात तो वो लगा है, लेकिन आम हालात में नहीं ऐसा होता कि हाँ ये कादियानी है बस फॉलो फ्री फेयर। नहीं, लेकिन रब्बा जाकर हम बहुत पक्के एमडी बन जाते थे। ददियाल रब्बा का था ना, है ना माँ? हाँ बिल्कुल। नहीं, रबुआ का तो मुझे नहीं पता। चनियोट अस्पताल था, किसी चनियोट का हॉस्पिटल बड़ा मशहूर था किसी दौर में ना। वहाँ पे नहीं, चिन्योट में हमारे अब्बू जब छोटे थे ना, तो चिन्योट में उनका घर था, वहाँ बहुत अच्छा बड़ा घर था। तो उसके बाद रब्बा शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट हुए रब्बा क्यों शिफ्ट हुए? रब्बा शिफ्ट हुए हैं कि फिर बड़ा घर बड़ा प्लॉट लिया, 2 पोर्शन बनाए, एक मेरे नाम का, एक मेरी शानी के नाम का। बाजी आपकी अम्मी जानती है मजीदा आंटी को? मैं जानती। आप जानती हैं? एक आईडी से अम्मा बोल रही है ना, एक आईडी से मैं बोल रही हूँ। मजीदा आंटी, बिल्कुल मजीदा आंटी की बहुत बड़ी फैमिली थी, बेटियां थी, 2 ही बेटे थे। अरे उनके घर हम बहुत जाते थे, इजलास होता था ना, तो हम उनके घर जाते। फिर वो शिफ्ट हो गई थी बहुत हमारे गुलिस्तानी जगह की तरफ से। बिल्कुल, पहले वो ब्लॉक 5 में बहुत साल रही हैं, ब्लॉक 5 में। हमारे घर में मैं पैदल जा सकती थी वहां पे उनके घर। उनका कॉर्नर का घर था, कॉर्नर का घर था उनका। अच्छा, ठीक। सफिया बाजी तो मेरी सगी बाजी, सफिया बाजी तो फिर मेरी सगी बाजी निकल आई। मजीदा आंटी को तो मैं भी अच्छी तरह याद हूँगी। अच्छा। आपकी कौन है वो? मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाद में बाजी बताऊंगा, यहाँ पे नहीं। यस, यहाँ पे कुछ जब फैमिली के बात पता चल जाती है ना, यहाँ पे तो फिर हमारी टेपे चलनी है, इससे अच्छा यहाँ हमारी टेपे ना चले। हाँ, अम्मा कादियान की कोई बात बताएं। बेटा मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ। नाना अबू तो बताते थे आपको? नाना अबू बताते थे, वो जाते थे कपड़ा लेने, दिल्ली जाते थे, शदीद सर्दी में ट्रेन में बैठ के जाते थे दिल्ली। फिर हुजूर के खानदान को साड़ियाँ चाहिए होती थी, उनके लिए साड़ियाँ, क्योंकि एक तो नाना अबू खूबसूरत बहुत थे, दूसरी छोटी उम्र थी, तो वो कोई पर्दा नहीं करता था, वहाँ घर में जाके साड़ियाँ बेचते थे, दिखाते थे मुख्तलिफ। पप्पू बच्चा थे नाना अबू? इतनी महंगा है। पप्पू बच्चा थे नाना अबू, छोटे से पप्पू बच्चा थे, प्यारे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको दिखाते थे, क्योंकि उनको ना महंगी साड़ियाँ चाहिए होती थी। अच्छा, तो वो कादियान से नहीं मिलती थी? नहीं, कादियान से नहीं, दिल्ली जाते थे, मुझे याद है, अभी तक बताते रहते थे ना वो। अभी जो हमारी नहीं, महंगी साड़ी क्यों, महंगी साड़ी क्यों, आम क्यों नहीं लेते थे? मतलब उनका कोई वो आम नहीं थे ना, कपड़ा, वो आम नहीं थे, वो हमारे जैसे आम नहीं थे ना। कौन आराम है बिलाल? और पूछ ले। कोई स्पेशल कपड़ा पहनती थी ना अम्मा जान? मैं आज तक बेशक लाखों का मेरे सामने कपड़ा पड़ा हो ना, मैं हमेशा कम कीमत का कपड़ा पसंद करती हूँ, और फिर मेरा दिल भी खुश होता है कि दूसरा जो पहने वो ज्यादा अच्छा है। मेरे बच्चों को भी पता है कि मैंने कभी मुकाबला नहीं किया कि मेरे पास मैं बेस्ट हूँ। ये अम्मी कौन सी? नहीं, वो इसलिए ना, मैंने इसलिए पूछा कि पूछो आते हैं ना बचपन से कि जो अंबिया होते हैं, सहाबा होते हैं, उनकी जिंदगी ज्यादातर फक्र में होती है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी, हजरत हुरैरा, हजरत अली, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, खुद रसूलुल्लाह, अम्मा आयशा,
यानी मोस्टली हमने कोई बिजनेसमैन ना हो खानदान या अब्दुल बिन औफ जैसे या उस्मान जैसे जो खानदानी रईस है, बिजनेसमैन थे, तो लेकिन आमतौर पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे हदीस है कि उन्होंने एक सहाबी को पूछा कि वो सामने और पहाड़ देख रहे हो, तो उन्होंने समझा कि शायद मुझे वहां पे कोई काम भेजेंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर ये पहाड़ पूरे का पूरा सोने का हो जाए ना तो मैं शाम से पहले पहले इसको सदका और खैरात कर दूंगा। तो आमतौर पे बचपन से तो यही सुनते आ रहे हैं कि अंबिया की जिंदगी जो होती है वो बड़ी फक्र की होती है, बड़ी सादा होती है, तो इसलिए मैंने पूछा। बाकी हाँ किसी को पसंद आ सकती है महंगी चीज, इसमें कोई वो नहीं है। बिलाल भाई जो खानदानी रईस थे सहाबा में से, उन्होंने भी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। मेरे अब्बू ने फैसलाबाद में एक कब्रिस्तान बनाया था, पूरा 4 दीवारी करवा के सेफ करके, फिर उसके बाद खुद फौत हो गए, फिर अब वो उसी कब्रिस्तान में है। वो क्यों नहीं करवाई थी? वो तो इतने अमीर थे नाना अबू ज्यादा अमीर थे, तो वो कह रहे थे कि हमें गलती ना लग जाए, कहीं पैसा कम ज्यादा ना हो जाए, इसलिए नानी अम्मी ने करवाई थी वसीयत, लेकिन नाना अबू ने नहीं करवाई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा था उनके पास। तो ये जो नाना अबू जाते थे अम्मा जान के पास, ये कौन सी ईयर की बात थी? पाकिस्तान बनने से पहले कब की बात है? कब? अच्छा मेरा एक सवाल है कि आप जो के शेख फैमिली है, तो आपके चनियोट में भी रिश्तेदार होंगे? तो इतने क्लोज नहीं, कोई इतने क्लोज नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी कपड़े वाले लोग देखे ना जब ताजिर हैं, वो सारे चनियोट के ज्यादातर। नहीं, हमारा कोई नहीं। नाना अबू की दुकान कादियान में थी और फिर डायरेक्ट फैसलाबाद में। हाँ कादियान में ना, जैसे दुकान मेरी दादी थी ना, वो घर में अकेली थी, उन्होंने फिर ना लोगों को बुला के तो ट्रक करवाया, फिर सारा घर का सामान भी रखा और कपड़ा भी रखा, दुकान खाली की और फैसलाबाद आ गए। अम्मा लेकिन आप लोगों ने आकर आपकी दादी ने क्लेम किया होगा ना, छोड़कर आए हैं वहाँ पे दुकानें घर? नहीं, खाली जो दुकान थे ना सब कब्जे कर दिए थे हम लोगों ने भी ना। जैसे सीढ़ियों वाला घर था, नीचे मोटरों का अड्डा था और ऊपर जब हम मतलब मुझे तो खैर उस वक्त में चंद महीने की थी, लेकिन कहते हैं कि वहां पे हम शिफ्ट हो गए थे। 3-4 घर साथ साथ थे, एक में मेरी ताई थी, एक में पोती, एक में हम थे। ऐसे खाली घर में कब्जा कर लेते थे उस वक्त। तो वो जो बाद में फिर वो क्लेम, बहुत सारे एमडीओ ने क्लेम नहीं किया था, बहुत सारे लोगों एमडीओ ने वो जो डालते हैं अप्लाई करते हैं वो नहीं किया था। लेकिन मैं तो हैरान होती हूँ आपकी दादी कितनी मजबूत खातून होंगी, सारा कुछ लेकर आई साथ। पंखा, जैसे मैं जब यहाँ आई हूँ ना उस वक्त तक एक पंखा भी हमारे घर पड़ा था, इंडिया का। बिलाल पता है अम्मा पैदा कब हुई थी? कौन से सन में? ईयर पूछो, सन पूछ। 47 और दिन बताओ। 14 अगस्त या 13 अगस्त? 14 अगस्त। ओ अब्बा मेरा 6 सितंबर। मंसूर 6 सितंबर को पैदा हुए थे।